वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Hello and welcome back to my YouTube channel Kavneer Academy, and my name is Simranjot Singh. And as we all know that I am teaching you maths. So we are already solving the NCERT book for class 10th, and we are already at the 5th chapter. So in the previous video we have done some kind of examples and some introduction related to arithmetic progression, that is the name of this chapter. And we have also discussed the general form of an AP. So in this question, first question of exercise 5.1, we have a table in which some values are missing. So we have to find out these values. So an is missing in the first, and d and 7 is given. So these are the values, and let us do this one fourth part, because it is in decimal form. So some students find it difficult to solve it. So let's do it. The fourth sum. What is given? A is given to us, that is minus 18.9. D is 2.5, and N is not given. AN is 3.6. The things that are given, we will write it like this. So using the general form of an AP, we know that AN is equal to A plus N minus 1 into D. So AN is what here? 3.6. A is what? Minus 18.9 plus N is what? Not given. D is what? 3.6. Okay. So minus 18.9, when it comes to the other side, it will be positive. So add them. 18.9 plus 3.6. So how do we add it? Under the point. The point is under the point. 9 plus 6 is 15. 2 to 5. Okay. So what will be here? 22.5 is equals to n minus 1 into 3.6. So are we doing right? 2.5 is D. Wait a minute. D is 2.5. That is what I was thinking. It is 2.5. So मैंने यहाँ पे जो गलत पुट कर दिया, please correct it. Now 2.5 will come in the divide. So when we will remove these decimals, it was one number after the decimal, so we will have 10 at the bottom, and after here it was one number after the decimal, and again we will have 10 at the upper side. So these two will cancel out. 25 on the table of 25, we can cancel it out, or simply divided by 5. 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 9s are, so n, so it becomes n minus 1 है ना, minus 1 इधर आ जाएगा तो plus 1 हो जाएगा. n is equals to 10. So missing value is 10. So हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से यही वाला फॉर्मूला यूज करना है. जो मिसिंग है वो छोड़ के बाकी पुट कर देना है, और आंसर आपने जो नहीं दिया वो निकाल लेना है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने खुद करना है. बाकी का क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक पार्ट सॉल्व कर दिया आपके लिए, ये नोट कर लीजिए. लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let's move on to the second question. We have two parts in this, first and second. We have to choose the correct option and justify it. Justify तो हम solve करके कर सकते हैं. तो हमें क्या दिया, दोनों क्वेश्चन में AP दी हुई है कोई ना कोई, और उनकी कोई ना कोई टर्म पूछी हुई है. तो ये सेकंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है. सिंपल, वो ऊपर वाला तो सिंपल ही है, वो आप खुद कर लेना. ठीक है, ये वाला करते हैं हम. पहले AP क्या दी हुई है हमें वो लिख लेनी है. -3 -1/2 2. ये हमें AP दी गई है. तो 11th टर्म पूछी इसकी, दैट इज n इज इक्वल टू 11 फाइंड आउट करना है. ओके, A क्या है हमारे पास? -3 है, और D क्या है? A2 minus A1. A2 कितना है? -1/2 माइनस A कितना है? -3. तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? -1 प्लस A2 is 6. 5/2 आ गया हमारा D. ओके, कौन सी आप यूज करनी है? हम
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ए एन कितना है हमारा 11 टर्म पूछी है, तो ए 11 ए कितना है -3 प्लस एन कितना है 11 टर्म पूछी है इंटू डी कितना है 5/2। ओके, -3 प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10 इंटू 5/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से 25 बन जाएगा। ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25 प्लस माइनस माइनस, तो 11 टर्म इज 22। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो बी। ऐसे ही ऊपर वाला करना है सेम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट कर दिया मैंने, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन माय नंबर। केवी एकेडमी मेरा पेज जो है वो भी आपने लाइक करना और आगे शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कवनीर एकेडमी जो मेरा पेज है, जो मेरा यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, उसको जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए। आगे आपने किया हुआ तो आगे भी करवाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैथ्स से कोई पीछे ना रह जाए, मैथ्स से कोई डरे ना। तो मैथ्स का डर निकालने के लिए ईजी वे से समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू एंड लर्न मैथ्स। ओके, नोट इट डाउन। Now let's move on to the next question, that is find in the following APs find the missing terms in the boxes। जो ये हमारे पास दी हुई हैं, ये सारी की सारी APs हैं। मिसिंग बॉक्सेस मतलब कि जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करनी है हमने। कोई भी AP दी होगी, सबसे पहले क्या करना है, गिवन क्या है, कौन सी टर्म गिवन है वो देख लेना है। तो थोड़ा सा जैसे मैं एक दो तरह के क्वेश्चंस जो है दोनों कर देता हूँ, जिसमें पहली टर्म मिसिंग है, एक तो वो क्वेश्चन कर देता हूँ, ये वाला लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और एक जिसमें पहली टर्म हमें पता है ये वाला कर देते। थर्ड और फिफ्थ पोर्शन मैं करूंगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपने खुद करना है। तो लेट अस डू द थर्ड फर्स्ट। सबसे पहले गिनिए कौन सी गिवन है हमें। एक पहली टर्म गिवन है, 2 3 चौथी टर्म गिवन है। सो A1 हमें गिवन है कितना 5। ठीक है, जिसको हम A भी बोलते हैं, सिर्फ पहली टर्म A1 या A की बात है। उसके बाद कौन सी गिवन है हमें, A4 गिवन है कितनी 9:1/2। मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सही करेंगे। 9 2 18 प्लस 1 19/2। तो ये फोर्थ टर्म गिवन है। ठीक है, फोर्थ टर्म को हम जनरल फॉर्म में इसके कैसे लिख सकते हैं, A + 3D लिख सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो A + 3D = 19/2 होगा, क्योंकि A4 को ऐसे लिख दिया मैंने, ये 19/2 के बराबर था। देखिए हमें गिवन क्या है, A गिवन है, यहाँ पे पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें पता चला A की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे पुट कर दी, 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो इट विल बिकम, एलसीएम तो लेना आता ही होगा, है ना। 5 to the 10 हो जाएगा, तो माइनस किया तो कितना आया, इधर मल्टीपल में है तो इधर आके डिवाइड में आएगा, डिवाइड वाली चीज के साथ में मल्टीपल में। ठीक है ना, 3 3 9। सो वी आर लेफ्ट विद D, कितना है हमारे पास 3/2। A भी आ गया हमारे पास, B भी आ गया। अब जो मिसिंग टर्म्स है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड टर्म, है ना। देयरफॉर A2 कितना होता है, A + B होता है। सो A कितना है हमारा 5, B कितना है 3/2, 10 + 3/2 13/2 आ गया सेकंड टर्म। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालनी है, इसको लिखते हैं A + 2D लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा A कितना है 5 + 2 × D कितना है 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, 5 + 3 कितना होता है 8। यही दोनों मिसिंग टर्म्स थी, सेकंड और थर्ड। ठीक है, जो भी ऐसे मिसिंग वाला आएगा ना, पहले इनको लिख लेना है A1 और A, दूसरी होती है A2, तीसरी होती है A3, चौथी होती है A4। जो गिवन है पहले वो लिख लेनी है, उससे सॉल्व कर निकल के A और D की वैल्यूज निकाल लेनी है। बाद में जो मिसिंग वाली हैं उनको हमने सीधा उनकी जनरल फॉर्म में लिख के उनके आंसर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको ऐसे हम क्यों लिखते हैं, जिन्होंने नहीं पता वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, ईजिली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला आप एक चीज़ ये वाली नोट कर लीजिए, थर्ड वाली स्क्रीन पॉज करके हम यहीं पे ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है,
होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, या फिर आपने पॉज करके लिख लिया होगा। तो लेट्स डू द फिफ्थ एंड द लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट सम इज व्हाट, फिफ्थ पार्ट। हमें कौन सी टर्म गिवन है, 1 2 सेकंड टर्म गिवन है, a2 गिवन है और 3 4 5 6 टर्म गिवन है। जो गिवन है पहले वो लिखनी है। हमें क्या गिवन है, a2 इज इक्वल टू 38 एंड a6 कितना गिवन है, -22। a2 को क्या लिख सकते हैं, सो a प्लस d इज इक्वल टू 38, a plus 5d is equals to -22. So these are the two equations. Okay, we will just subtract them. a और a कैंसिल, वैसे जैसे हम सॉल्व करते थे थर्ड चैप्टर में, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। -4d is equals to 38 प्लस 22 हो जाएगा, 8 और 2 10, ऊपर गया 1 6, d is equals to 60 upon -4, 4 1s are 4, 2 बच गया, ठीक है, 4 5s are 20, माइनस साइन रहेगा, d इज इक्वल टू कितना आ गया, -15। ऐसे ही हम a भी निकाल लेंगे, पुट इन 1, ठीक है, 1 इक्वेशन में पहली वाली पुट कर दो, a प्लस -15 इज इक्वल टू 38, -15 उधर हो जाएगा प्लस का, प्लस करो इसको, 10 प्लस किए पहले 48, 5 और प्लस किए 53। तो पहली टर्म भी आ गई हमारे पास, डी भी आ गया। क्या करना है अब, बाकी की टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ए तो पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, अब क्या A3 A4 और A5 फाइंड आउट करना है। A3 कितना होगा फिर, a प्लस 2d, a कितना है हमारा 53 प्लस 2 इंटू d कितना है हमारा -15, -15 into 2 that will become -30, it becomes 23। so हमारी a3 कितनी आ गई 23। इसी तरह से अब नेक्स्ट निकालेंगे, a4 निकालनी है ना, अभी 3 4 5 5 तक निकालनी है, फोर्थ क्या होगी a प्लस 3d। सिंपल एक और चीज़ भी हो सकती है, जस्ट ऐसे निकालो तो भी अच्छा है। थर्ड वाली टर्म में एक और d ऐड कर दो, मतलब d हमारा -15 है तो ऐड हो जाएगा, तो वैसे भी हो सकता है, ऐसे करना है ऐसे कर लो, दैट इज योर चॉइस। 3 इंटू -15, 15 इंटू 3 दैट बिकम्स 45। क्या a हमारा कौन सा 4 निकाल रहे हैं, 4 कितना आ गया 8, a4 8 आ गया। अब रह गया a5, ठीक है, a प्लस 4d, 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 प्लस 2 आएगा, प्लस माइनस -60, सो इट बिकम्स -7 फिफ्थ टर्म। सो हमारे पास मिसिंग टर्म सारी आ गई, ये वाला हमने सॉल्व कर दिया, एक ये कर दिया, बाकी आपने ऐसे ही जैसे मैंने अभी किए सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो नेक्स्ट 2 सम्स मैंने लिखे हैं, ऐसे सेम एग्जांपल्स में हमने किए थे, मैंने आपको पहले बताया था, एग्जांपल्स थोड़ी ज़्यादा हैं बट वो आपको एक्सरसाइज में बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपने एग्जांपल्स ऑलरेडी की होंगी। तो ये देखिए, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78। सो ऐसे में क्या है, पहले तो AP जो दी गई है उसकी पहली टर्म लिख लेनी है, A लिख लेनी है, D निकाल लेना है, 8 - 3 दैट इज़ 5। और हमें पूछा गया है ये कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म नहीं पूछेगी कि ऐसे नहीं पूछा गया ये 78th टर्म निकालो, ये पूछा गया ये कौन सी टर्म है, nth टर्म हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, तो ये हमें ले लेते हैं लास्ट टर्म में, हम मान लेते हैं अभी हमारे पास 78 है, ये हमें जो नहीं पता तो हमें पता करना है कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है। ये आपको सारे पास सारी वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। सेम इसी तरह से इनमें भी n ही निकालना है, इन दोनों क्वेश्चंस में। ओके, पहले इसको वैसे सही भी कर लेना है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेना। ये दोनों क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह करने हैं, a d an हमें ये दोनों an है, इन दोनों के a इन ये दोनों है, d निकाल लेने हैं,
वो हमें दिया है, दोनों में n निकालना है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस के लिए हैं, आपने एग्जांपल्स में ऑलरेडी किए हुए हैं, मैंने करवाए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको समझा भी हुआ है। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है, अगर नहीं पता चल रहा है, तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो जो है आप मुझसे पूछ लीजिएगा मेरे नंबर पे, वो कौन सी वीडियो है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा वो वाला पार्ट। तो वहाँ से देख लेना कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, जो मेरी वीडियो नहीं देखी या भूल गए हैं। ठीक है, ये वाला खुद करना है आपने, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, एग्जाम्पल में हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि हमने चेक करना है कि ये टर्म जो है इस एपी का पार्ट है या नहीं, ये इसकी सीरीज में आती है या नहीं। ठीक है, ठीक, ये इसका नंबर है कि नहीं, इस सीरीज में आता है कि नहीं। तो ये पहले हम एपी लिख लेंगे। आप बोलोगे सारे खुद ही सॉल्व करने को बोले जा रहा है, तो इसलिए मैं एक सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ताकि अगर भूल भी गए हों तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। कौन सी टर्म पूछी है उन्होंने, वो वाली हमने ए एन मान लेनी, क्योंकि ये हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म हो सकती है। अगर ये है भी तो कौन सी है, नहीं है तो पता चल ही जाएगा। ए कितना है हमारे पास 11, डी कितना है 8 - 11 - 3। ओके, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू बी। ए एन कितना है -150, ए कितना है 11, n हमें फाइंड आउट करना है, और डी कितना है -3। ओके, तो 11 इधर आगे हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस होंगे, -161 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3, -3 डिवाइड में आ जाएगा, 161 डिवाइड बाय -3 n - 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, साफ दिख रहा है, 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा, चेक करके देख लीजिए। अब क्या होगा 161 डिवाइड बाय 3, -1 इधर आके हो जाएगा प्लस। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 164/3, विच इज अ डेसिमल नंबर। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल नंबर में आएगा। क्या लिखेंगे, एज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, so -150 is not a term of गिवन एपी। तो -150 हमारे जो गिवन एपी की टर्म नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, वैसे तो हमने एग्जांपल में किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ये आप नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। 7th क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने भी एग्जांपल में किया हुआ है। मैंने आपको बताया था जब एपी गिवन ना हो, कोई टर्म्स गिवन हो उसकी, तो कैसे लिखते हैं। 31st टर्म फाइंड आउट करने को बोला है, हमें चाहिए 11th टर्म गिवन है और 16th टर्म गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। सो वी गेट, क्या आ गया हमारे पास, इनको इनके जनरल फॉर्म में लिखना है। A11 को हम A + 10D लिख सकते हैं। सो A11 अगर 38 के बराबर है, A + 10D को हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये भी इक्वल टू 38 होगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से A + 15D इज इक्वल टू 73 होगा। ठीक है, तो अभी इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 और 2, दोनों को माइनस करना है। A + 10D इज इक्वल टू 38। वैसे तो वहाँ पे भी कर सकते थे, पर इसको लिखना जरूरी था स्टेप हमने। A और A कैंसिल, -5D आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 73 में से 38 माइनस कर दो तो कितना आता है, एक तो पहले 5 बचेगा और 35 आएगा। ओके, माइनस का 35 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन बढ़ा ना 73 का, तो इट बिकम्स -35 डिवाइडेड बाय -5। डी कितना आ गया 7, पुट इन, जो जिसमें मल्टीपुट कर दो 1 में पुट कर देते हैं। A +
10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले तो लिखते हैं 7 इंटू 10 कितना हो गया 70 इज इक्वल टू 38। 38 माइनस 70 कितना आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस 32। सो ए आ गया हमारा माइनस 32। उसकी 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। ए 31 कितना होगा, ए प्लस 30 डी। ए भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, इसमें पुट करिए और आपका 31st टर्म जो है इस ए बी की आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये हमारा 8 सम इसी एक्सरसाइज का, ऐसे वैसे इसमें 20 सम्स हैं टोटल। सो आज की वीडियो में हम 10 सम्स ही करेंगे, चाहे हमारे 5 मिनट और लगें सिर्फ। ठीक है, तो हम 10 सम्स ही करेंगे। 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी, कोई बात नहीं, पर उसमें मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे दिए, तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस तो ज़्यादा ही हो जाएगी। ठीक है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक ए पी में कितनी टर्म्स हैं टोटल, 50 टर्म्स हैं। ठीक है, हमें पता है कि टोटल एक ए पी जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें 50 टर्म्स हैं। लास्ट टर्म 50th टर्म है, उनमें से थर्ड टर्म कितनी क्या है, A3 that is 12 and last term is 106। so last term कौन सी है, 50 टर्म्स है टोटल, तो लास्ट टर्म ऑब्वियसली 50th टर्म होगी। so A50 is equal to 106। सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। दो चीज़ें आ गई हमारे पास, 29 टर्म पूछी हुई है। A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इसको लिख सकते हैं A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को माइनस करके डी निकालना है, फिर ए निकालना है। वैसे ही जैसे हमने जस्ट पहले इस समय किया है, सेम वैसे ही करना है बाकी का पोर्शन। जस्ट मैंने समझाना था, इसको अच्छी तरह से समझो स्टेटमेंट को। मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट। मैथ्स को जो डिफिकल्ट समझते हैं वो डिफिकल्ट असल में है ही नहीं। स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लोगे, उसके हिसाब से लिख लोगे, फॉर्मूला पता होगा, तुम्हारा कोई सम गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, सॉल्व इसको खुद करना है आपने। ये हमारे 9th एंड 10th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के। बाकी के 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और हो सके तो उससे आगे भी करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी बताऊंगा, कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो 9th क्वेश्चन जो है इसमें क्या बताया गया है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन ए बी आर 4 and -8, मतलब कि A3 जो हमारे पास 4 है और A9 इज इक्वल टू -8। तो इसको वैसे ही जैसे हम पहले लिखते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगी A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, इसको सॉल्व करना है, D निकालना है, A निकालना है। ठीक है, A और D दोनों निकल जाएंगे। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, कौन सी टर्म इस ए बी की 0 है, मतलब कि AN 0 गिवन है हमें, इन दोनों के A और D फाइंड आउट करने के बाद। ठीक है, उन्होंने पूछा कौन सी टर्म 0 है, तो हमने कौन सी टर्म निकालनी है जो 0 है। तो AN और N हमें गिवन है, इनमें से सॉल्व करके हमने A और D निकालने हैं। फिर हमने AN वाला जो हमने फॉर्मूला किया था, A प्लस n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देंगे, A की वैल्यू जो भी आएगी, D की वैल्यू जो आएगी वो भरनी है, N निकालना है, N निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से बहुत सिंपल है। ठीक है, स्टेटमेंट को मैंने समझा दिया, थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया, कौन से क्वेश्चन फॉर्मूला लगना है, कैसे लगना है वो बता दिया। सॉल्व आपने खुद करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए तो एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस डिफरेंट है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी हुआ कई बार, तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के केस में लिख सकते हो। इफ द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। एक क्वेश्चन बताया कैसे गया, एक ए पी की 17th टर्म एक्सीड करती है, मतलब कि बड़ी है, किससे, 7 ज़्यादा है उसकी 10th टर्म से। 17th टर्म इज इक्वल टू 8 10 प्लस 7, 10th टर्म से 7 ज़्यादा, एक्सीड मतलब प्लस। तो A17 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16D। A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। ओके, A और A कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल। 9 इधर आएगा, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16D माइनस 9D becomes 7D is equal to 7। From here D is equal to 7 by 7, that is D कितना आ गया, 1। यही पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस क्या करना है,
क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है। बस जब इक्वेशन की हमें समझ आ गई क्या कह रहे हैं तो हमें पता चलेगा क्या निकालना है। मैथ्स इज़ वेरी सिंपल। ओके, तो ये जो है आप स्क्रीन पॉज करके ये पूरा नोट कर लीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जितना हो सके इसको आगे सेंड कीजिए अपने रिलेटिव्स को, अपने और चाहने वालों को, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो मिले ही, उनको भी एक अच्छा मैथ्स टीचर मिल जाए। So that is my goal. Thank you very much for watching my channel and watching my videos, and keep supporting, keep subscribing my channel. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।